नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आणि एक खास कार्यावळ इफ्फी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. रायट नाव 51st इफ्फी चालू आसा अँड जायतीं फिल्मां, वेगवेगळीं फिल्मां, वेगवेगळो कल्चर आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा आनी शिकपाक मेळटा. एक सदांच आमी म्हणटा की आमचें जें जग आसा न्ही, त्या जगान आनीक जग आसा काय, आनीक दुनिया आसा काय, हो प्रश्न आमच्या तकलेन सदांच येता न्ही आनी खुबशे फावटी आमी विचार करपाक लागता. बट आमचें जें रावता पळय ज्या जगान, त्या जगान सुद्दां आनीक दुनिया आसूं शकता. हो विचार कितलो नवीन आसूं शकता न्ही. सो एक फिल्म जे एक डॉक्युमेंटरी फिल्म जे आमी हालींच आमकां आमचे इफ्फीक पळोवपाक मेळ्ळें तें म्हळ्यार इन आ वर्ल्ड. ही जी डॉक्यूमेंट्री आसा ती एकदम वेगळी आशिल्ली. कित्या खातीर वेगळी आसा, कितें आसा ही डॉक्यूमेंट्री, ये हम जान लेंगे. हमारे साथ है श्रीधर वी एस सर, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ऑफ द डॉक्यूमेंट्री ऑफ द फिल्म. सर, हाउ वाज द रिस्पॉन्स? Response was good. I mean, most people found the film very emotional, and they said that there were a lot to learn from the film. That gave me the happiness that at least the objective of creating a film on awareness towards this condition called autism was successful in that way. क्या है इस फिल्म में, क्या लोगों को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा? It's actually, we have filmed 3 children and their parents, their therapists and special educators. Our idea was to kind of show what happens behind the curtains, what happens actually in a world where these children are being raised, what happens and how they're being raised, how the society reacts to these children, how the society reacts to the parents. So that was our whole intention behind the film, and that is what you would get to see in the film about their everyday lives, everyday lived experiences of these people. So there are moments in the film where you can see that, you know, how they are being discriminated by the society. They are being pushed back because they feel that these children cannot be assimilated into the normal society. So we wanted to bust all these myths to make sure that, you know, they are looking for love. They're looking for acceptance. They're not harmful to you. They're just different. Their approach to communication could be different. Their behavioral patterns could be different. Doesn't mean that they mean any harm to you. So it is only a matter of acceptance through love, affection, to create one world. So hence we named it also In Our World, because they exist in our world. There is no different world to this. We are all one. वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड फॉर देम. और जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर हम जब इस दुनिया में जीते हैं तो पैरेलली हमारी दुनिया में भी बहुत सारे लेयर्स बना के रखते हैं. हम खुद ही बना के रखते हैं, या फिर वो जो रास्ते पे साइड में भीख मांगते हुए भी लड़के हो, उनके लिए भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या जैसे आपने सर कहा कि ऑटिज्म, उनके लिए भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं. क्या थॉट था शुरू करने से पहले, क्योंकि कोई भी प्लॉट लिखने से पहले कुछ तो थॉट होता है, कि क्या थॉट था? Actually, ये शुरू हुआ था, there used to be a teacher who used to come home to teach my children piano. तो उनसे हम एक दिन ऐसे बात करते वक्त उन्होंने बोला कि हम स्पेशल चिल्ड्रन को भी म्यूज़िक सिखाते हैं. So I wanted to actually go to their house to understand how music works on these children. How does music impact these children? That is how I went there. And when I went and met the parents and the children, I realized that it is not just music. There is a lot more to talk about. It's more to talk about the apathy that the society have towards these children and the parents, and how they are being discriminated, and how difficult it is for them to raise their child in a society which is not accepting. So that was the first moment when I felt that it is important to put together these conversations that I am having in the form of a film, so that people can come to their own understanding of the film. We thought initially that we would do a script, we would do a voiceover and things like that. Then I realized that no, we should not be saying this. It is their message. It is parents who are crying to tell the world their life, about their life. The children, without speaking, they are saying what they want to say. So I wanted the world to know what this world looks like, and where you need to understand that they are in our world. And why is it that there is a difference between two worlds? There shouldn't be. We should always be accepting each one for the difference. Not two people can be alike. क्या हम लोग गलत तरीके से लेते हैं, या फिर हम लोग जब रिएक्ट करते हैं तो गलत तरीके, क्योंकि उनका एक बिहेवियर पैटर्न है, तो शायद हम लोग रिएक्ट करते वक्त गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं? हमारा साइड से ना हम ऑलरेडी एक नॉर्मेटिव टर्म्स में हमको लगता है कि ये लोग सब नॉर्मल होते हैं और ऐसे बिहेव करने वाले अब नॉर्मल होते हैं. तो वो प्रॉब्लम है.
पहला चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए कि डिफरेंस इज़ व्हाट मेक्स दिस वर्ल्ड मोर कलरफुल. वो difference need to be understood by us and accepted by us. If we don't accept that difference, then it will all look the same. There is no beauty in this world. I feel that the beauty comes when there is different colors and different types of people. When they come together, that makes the world beautiful. That's the thought and the message that I want to give through this film. सो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था सर, कितना टाइम लगा आपको इन सारी बातों के लिए रिसर्च करने के लिए या फिर शुरू करने के लिए? Actually, it took about 3 months of time to kind of research about the subject. During this 3 months, we made sure that we were going to the houses of these children to spend more time with them, to play with them, to have interactions with them, to make sure that we are all in the same page, including parents, us, the children. We all got friendly. We all got happy getting together to be friends, and that enabled us to kind of film it very easily. Otherwise, this filming wouldn't have been possible. So for us, it was like we spent about 15 days of filming, but actually 3 months of research and kind of getting used to their house and the situation. And then we took 6 months to put this together, because these are conversations from different people, which are not stitched together through a particular voiceover. We had to actually stitch conversations together to make sense, so that these are different people, different situations, but we had to stitch it together through conversations to build a story, a narrative, and then present. सर एक बात यहाँ पे है कि आपने कहा कि म्यूज़िक किस तरह से काम करती है उनके लाइफ में। सबसे पहले जब आपने देखा ये सब कुछ तो क्या लगा, हाउ म्यूज़िक प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ? Music works as a soothing element for the children, and also there is something called these children have some quality called hyperfocus. So they don't get distracted by many things. Me and you, while we are having this interview, we could be having many thoughts running through our head, whereas these children don't have those thoughts. They're very focused on what they're doing. So the good part is these children can excel in whatever they do, and they do excel. And the thing is, like, there are many times these children, without actually, in the movie also they say, without actually seeing the notes, they can read, they can play music. And also music does kind of stimulate them in a very positive way. That's what I could understand. सर इसके अलावा मैंने बहुत बार जब आप बोल रहे थे तो मुझे कुछ बातें याद आ रही थी कि उनको मतलब लाइफ में लार्जर देन लाइफ चीज़ें बहुत पसंद, या फिर जादू के कुछ ये इनका इनके दिमाग के ऊपर, मतलब जब आप देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है या फिर कुछ अच्छा नया महसूस होता है, ऐसा कुछ है सर? Well, they're excited about most of the things which are nice and bright and loving and happy. They are children of that nature. They love happy things going on. And it has worked well for them that, there are positive sounds, positive things, positive movies, and those are the things that works well for them. They're not too much into the darker side of things or convoluted narratives. I don't think they are used to such things, yeah. और एक बात सर, जब सबसे पहले जब स्क्रीनिंग हुई थी मूवी की, उनके पेरेंट्स थे, वो थे, क्या रिएक्शन था सबसे पहले? They were emotional. Actually, I saw most of the parents in tears, actually. They said, we miss our children more after seeing the movie. Because in FEV, they couldn't bring their children because there is an above 18 restriction over there, or restriction below 18 was there. But I saw them crying, and they said that it brought back all the memories. We miss our children more today. And I think the message was of love, because they felt more love, and that's what I could sense. First of all, I wish IFE 51 for grand success, because I have been attending from this first IFE from the first 12 years. This time everything is same, except because due to pandemic reason, the gathering might be less. Arrangements is extraordinary. Yesterday, what I observed in opening ceremony also excellent. They invited only limited guests invited, and Kicha Sudeep was the chief guest, and very, very happy about that for having given opportunity to become the chief guest from the Karnataka. It has happened first time in the history of IFE, I believe, after 1992 when Dr. Rajkumar has been invited. That time there was a clash regarding water issue, Kaveri issue. After a gap of 30 years, Sudeep has inaugurated function on behalf of Kannada film industry, on behalf of Karnataka, more than 6 crore people. And personally, I'll wish to the IFE 51 entire management
for giving an opportunity one Kannada artist to inaugurate the function, sir. Thank you. And second things, regarding arrangements, really I'm very happy because due to pandemic, that is the reason now gathering, everything might be less, but arrangement is extraordinary. They are not at compromise. Like last year also, I'm finding same thing here. So it is going to be a good this thing for other 3-4 days people may enjoy. And from Karnataka, usually every year more than 60, 70, 100 people used to come for this function. This IFI management itself, they have made some restrictions for to participate in this function. Everything has been done in virtual. So this is due to this SOP and due to the government guidelines, they might have done like that. Definitely in future also, this is going to be one of the great IFI 51s. How do you think this type of festivals, maybe for the debutants or for the who are in the film industry, how this type of festivals can help them to grow? Definitely is going to help. Because last year, compared to last year, this time a lot of good movies have come. That's what I heard in the opening ceremony function. Better than last year, a lot of good movies have come. And not only this IFI 51, in IFI of Bangalore also we are going to conduct film festival next month. There also you can expect very good movies throughout across the countries. 100% this type of festivals is going to help for all producers, distributors, directors. And personally, I'm very happy about this event, sir. 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी यहाँ पे गोवा में शुरू है एंड काफ़ी सारे सितारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, बात करने को मिलते हैं, उनके दिल की जो बातें हैं वो आप तक पहुँचाने का काम हमारा है. यस, एंड राइट नाउ आई हैव विद मी सोहम मजुमदार सर, जिनको अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और वेरी फेमस फ्रॉम द फिल्म कबीर एंड कबीर सिंह एंड अभी तो इसके लिए ब्रह्माजान एंड गोपन कॉमोटी के लिए आए हैं इधर. सो जो एक बंगाली फिल्म है, तो आप पूछिए, आपको क्या पूछे. बिकॉज हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं सर, बहुत प्यार करते हैं. फिलहाल गोवा में जो फिल्म चल रही है और वो विमेन सेंट्रिक फिल्म है. क्या है ये फिल्म? तो वही मैं बता रहा था कि हमको बॉक्स नहीं करना चाहिए कुछ विमेन सेंट्रिक या मेल सेंट्रिक, क्योंकि फिल्म होता है, स्टोरी होता है. अगर एक स्टोरी आप ऑनेस्टली बता सके तो वही फिल्म का क्या बोलते हैं, यू शुड सेलिब्रेट द स्टोरी मोर देन एनीथिंग. तो अगर हम लोग स्टोरी ऑनेस्टली बता सके, वो कोई फीमेल या मेल सेंट्रिक के हिसाब से हम लोग को बॉक्स नहीं करना पड़ेगा. और हम लोग तभी आई थिंक एज एन इंडस्ट्री ग्रो कर पाएंगे कि मेल और फीमेल इक्वली है भाई, कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है. तो मुझे लगता वही है है. कि इसके लिए मैं भी माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर आने से पहले कुछ स्टडी की थी, तो उसके बारे में जो मिला वही आपसे पूछने की कोशिश की थी सर. सर मैं सच में बताना चाहता हूँ कि आप ऑन स्क्रीन जब भी देखते हैं आपको तो बिल्कुल एक कैरेक्टर में लगते हैं, और अभी जब सामने देखते हैं सर, एंड दैट्स अ पावर ऑफ थिएटर. क्योंकि सर ने अभी बात करते हुए एक बात बताई, आप थिएटर भी करते हैं सर. कैसा एक्सपीरियंस रहता है सर थिएटर का और फिल्म का? सर बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है. थिएटर इज़ एन एक्टर्स मीडियम एंड फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम. अगर डायरेक्टर एक फिल्म जब बनाता है, हम लोग सारे डायरेक्टर के विजन को फॉलो करते हैं. ऐसा नहीं है कि थिएटर में नहीं करते, बट थिएटर में क्या होता है, अब एक लाइव शो होता है, लाइव शो के अनुसार हम लोग को काफ़ी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि ऑडियंस कैसा है, ऑडियंस के हिसाब से मीटर ठीक करते हैं. वो मीटर भी काफ़ी अलग होता है. बट जो थिएटर में मुझे दिया है वो है डिसिप्लिन. तो वो जो डिसिप्लिन होना चाहिए एक कैरेक्टर को परखने के लिए, एक सोल को जानने के लिए. बिकॉज आई फील अगर जो डिफरेंस नहीं है वो मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एक सोल प्ले कर रहे हैं. अगर हम आपको आज प्ले करें, आई विल लाइक टू अंडरस्टैंड योर सोल मोर देन एनीथिंग. सो ये जब सोल हम लोग अगर प्ले कर रहे हैं, तो ये अगर सिंसियरली नहीं किए तो आप भी देख के बताओगे ये क्या किया है. सर कमिंग बैक टू इफ़ी, इस साल का इफ़ी आपने भी फर्स्ट टाइम अटेंड किया है. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. इट्स स्टिल एन ऑन गोइंग एक्सपीरियंस. बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है इस पैंडमिक के हमें जो जिन्होंने आई मीन इतने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, बट दे हैव बीन वेरी राइट अबाउट इट. हम लोग को क्या होता है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम लोग सारे कम्युनिटीज़ मिल के गए थे फिल्मों को देखने के लिए, सो दैट वी कैन अगेन गेट बैक टू दैट नॉर्मल. चार्ली चैपलिन देखने गए थे, तब चार्ली चैपलिन को देख के हंसते थे कि जो भी करते थे. सो ये वापस करना पड़ेगा हम लोगों को. तो आई होप दैट दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ दैट. और होपफुली यार इंशाल्लाह सब एक साथ होके मिलके देखेंगे फिल्म. और
आपके लिए बोलते हैं हम लोग स्टोरीज, आप अगर नहीं आओगे तो किन के लिए बोलेंगे। और मुझे वो ना फ़ोन पे अच्छा नहीं लगता है, OTT स्पेस अच्छा है अभी आ रहा है, बट वो बड़े थिएटर स्क्रीन वाला पे वो तो अलग ही नॉवेल्टी है उसका। मतलब प्रोड्यूसर्स या फिर फिल्म मेकर्स भी उतनी जान लगा के उसके लिए करते हैं फुल फील देने के लिए। सर ये एक चांस मैं नहीं छोड़ता जब हम हमारे गोवा में जब सेलिब्रिटीज़ आते हैं कि गोवा कैसा लगा सर? अरे सर ये तो थर्ड टाइम है गोवा में, और सेलिब्रिटी मत बुलाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ सेलिब्रेट करने को है नहीं इधर तो। बट बहुत ही अच्छा लगा। आई लव द पीपल ऑफ गोवा मोर देन एनीथिंग इन गोवा। आज ही हम लोग गए थे, वो कालंगुट बीच है ना, अच्छा, तो बढ़िया यार, क्या क्रैब्स खाए मैंने यार, क्या क्रैब्स खाए, ऐसे क्रैब्स तो खाए नहीं कभी। बट यार आई लव्ड गोवा यार, लव्ड गोवा। दिस इज माई थर्ड टाइम। और पहली बार कब आए थे सर? पहली बार आया था मैं 2008 में शायद, मेरे 10th के बाद। क्या बात कर हाँ, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ था तो मम्मी के साथ आ गया था मैं। वो गलत कंपनी था बट ठीक है। फर्स्ट टाइम एंड मम्मी के साथ मम्मी के गोवा में। साथ, गोवा में। वेरी बैड चॉइस। सर थैंक यू वेरी मच। हम जैसे कहते हैं अतिथि देवो भव, गोवा में आपका स्वागत है एंड हर बार ऐसे ही सर आते रहिए और आपकी सारी फिल्में कॉल करेंगे हम। थँक्यू सर, थँक यू सो मच। 51st इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सध्या गोंयांत चालू आसा आणि वेगवेगळे आमी लोकां कडेन उलयतात आनी तांचे कडल्यान जाणून तांचो एक्सपिरियन्स बीन। बट रायट नाव ह्यो गजाली आमच्यो वेगळ्यो आसतल्यो। हमारे साथ इस वक्त हम जिनके साथ बात करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 2 सालों से या फिर 1 साल पहले जब इफ़ी हुई थी तभी से हम सभी उनको जानते हैं और उनका जो एक मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भाग रहता है वो इतना पावरफुल हमने देखा है कि पिछले इफ़ी और इस साल का भी इफ़ी अभी जो ऑनगोइंग इफ़ी है वो भी हमें देखने को मिलता है। ESG के CEO अमित सतेजा सर हमारे साथ है। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर सबसे पहले इस साल इफ़ी कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो चुका था, अभी फ़िलहाल तो इफ़ी चालू है। कैसा अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है ESG की तरफ से इफ़ी का? हम लोगों को भी थोड़ा एक मन में कंसर्न था कि कितना रिस्पांस होगा, इसीलिए आप देखे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने जब डिसाइड किया, स्टीयरिंग कमेटी में जब डिस्कशंस हुई थी तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर थे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब थे, तो स्टीयरिंग कमेटी ने भी काफ़ी ग्रेट तरीके से डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड किया कि इसको पोस्टपोन करेंगे और जनवरी के महीने में करेंगे। तब तक कोरोना थोड़ा हो सकता है कंट्रोल में आएगा, वैक्सीन वगैरह आने की कुछ उम्मीद थी। तो सारी तैयारियां हुई उसके बाद, और चूँकि ESG पिछले 1 दशक से ज़्यादा से इसमें इन्वॉल्व है तो हमें वो सारी प्रोसेस पता है। लेकिन जो नया चैलेंज इस बार था कि कोविड-19 के दरमियान हम कैसे करेंगे, तो कुछ एक चीज़ें हमने चेंज की, जैसे कि नंबर ऑफ़ सीट्स कम हुए, सीट्स के बीच में गैप रखा गया है, 50% कैपेसिटी अलाउ की गई, और अगर थिएटर बड़ा भी है तो भी 200 से ज़्यादा हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर। सारे सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल, मास्किंग, टेम्परेचर चेक एक्सेट्रा सब कुछ की जा रही है, और उसको देखते हुए थोड़ा जो लोगों के मन में एक संदेह था उसकी वजह से थोड़ा डेलीगेट रिस्पांस कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 50th ईफी था, गोल्डन जुबली था, तो नंबर ऑफ़ डेलीगेट्स काफ़ी ज़्यादा थे। इस बार हमारे पास करीब 2000 के आसपास डेलीगेट की संभावना है फिल्म फेस्टिवल ख़त्म होने तक। फिल्म की संख्या काफ़ी है, करीब 200 के आसपास फिल्म दिखाई जाएंगी। प्रीमियर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो आपने देखा होगा पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में बताए गए थे। तो ओवरऑल एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है कि इस पैंडेमिक के दौरान भी एक फ़िज़िकल प्लस OTT का एक मिक्स फिल्म फेस्टिवल वो भारत विश्व के सामने पेश कर रहा है और सक्सेसफुल तरीके से पेश कर रहा है। आपने देखा होगा ओपनिंग सेरेमनी में भी विथ ऑल प्रिकॉशंस वी कुड डिलीवर अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस एंड इट वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। सर जिन अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ESG एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा पूरा इफ़ी हैंडल करती है, मतलब टेक्निकल या फिर शेड्यूलिंग और सब कुछ आप देखते हैं। सो वो कैसे मैनेज हो पाता है, क्या है उसके पीछे की कहानी? जो सॉफ्ट पार्ट है वो जैसे कि फ़िल्म का चयन हो गया या फिर फिल्म की जो शेड्यूलिंग आप बोल रहे हैं, वो सारा कुछ वो DFF करता है, डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, और हम यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया, जो हमारे गेस्ट आते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट है गोवा में अतिथि देवो भव का, तो उनका जो हम देख रेख है, उनका होटल का इंतज़ाम या गाड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, और जो प्रोजेक्शन की टीम है, वेन्यूज़ कितने होंगे उनके, और भी तरह तरह की जो ज़रूरतें होती हैं वो सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन कई सालों से चला आ रहा है, और जो कि और धीरे धीरे मजबूत हो जा रहा है, चूँकि एक दूसरे को समझते हैं, किस तरह की चीज़ें
मतलब करनी चाहिए जिससे कि ये फिल्म फेस्टिवल और भी अच्छा होगा, वो हमारा कंप्लीट एक उद्देश्य होता है, जिससे कि हम डेलीगेट्स को, जो सिने एंथुजियास्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक और भी अच्छा एक अनुभव दे सकें और गोवा को एक वर्ल्ड जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें गोवा को हम पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर सकें। गोवा में अब जैसे इफ़ी हो रहा है, गोवा का हिस्ट्री अगर देखा जाए तो फिल्मों के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में यहाँ पे बन चुकी है, उसका रीमेक हिंदी में भी बन चुके हैं। तो गोवा का जो टैलेंट है वो इफ़ी के लिए कैसे क्या इस्तेमाल होता है और आपका उसके और देखने का नज़रिया क्या है? अब देखिए, गोवन जो आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पे जो भी बडिंग एक्टर्स हैं या बडिंग स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ईफ़ी की वजह से पूरे वर्ल्ड का टैलेंट यहाँ आता है, उससे उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अभी कई स्टेट्स में ये संभव नहीं है। यहाँ पे जो एक सुविधा मिलती है, एक माहौल मिलता है, सीखने का मौका मिलता है जो कि अनपैरेलल है। उसकी वजह से आप देखेंगे गोवन जो कलाकार हैं या गोवन आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर्स हैं, दे हैव बीन रेगुलरली विनिंग नेशनल अवार्ड्स, दे हैव बीन रेगुलरली प्रोड्यूसिंग वेरी नाइस मूवीज़ और उनके टैलेंट को हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है। तो एक रब ऑफ इफेक्ट इसको कहते हैं किसी चीज़ का, वो ईफ़ी के परमानेंट होने के वेन्यू होने की वजह से उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। दूसरा है एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, जो एक फुल इनकम्पासिंग एंटरटेनमेंट प्रमोशन का उद्देश्य रखती है। वो थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, मान लो दूसरी फिल्म फेस्टिवल्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसके अलावा जो टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम लोग करते हैं। सिनेफाइल क्लब चलता है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों में पिछले सालों में हम लोगों ने दूसरे स्टेट्स में भी जाके फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है। इस साल भी हमारा एक उद्देश्य था, लेकिन कोरोना की वजह से हम कई प्रोग्राम्स हमें पोस्टपोन करने पड़े। तो एक ओवरऑल जो माहौल होता है और एक जो टैलेंट पूल जो यहाँ आता है, वो अदरवाइज सिर्फ शूटिंग के लिए आएंगे, वो एक नॉलेज शेयरिंग के लिए या अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए वो नहीं आएंगे इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को यहाँ पे अपने प्रोफेशन को एक्सप्लोर, न्यू प्रोफेशन एक्सप्लोर करने का और अपने टैलेंट को होन करने का। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक MOU साइन किया था गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साथ, लास्ट ईयर 2019 में। और आप देखेंगे लास्ट ईयर जो मंडोवी प्रोमेनाड पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई थी, उसमें काफ़ी भीड़ थी, लोगों ने काफ़ी सराहा था। तो वो एक हमारे MOU की वजह से एक वो आगे बढ़ा था। और जितने भी मास्टर क्लासेस सारी चीज़ें होती हैं हम उनको इन्फॉर्म करते हैं और भी उनकी कुछ मान लो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा एक पर्पस है कि आगे भी जैसे लाइन प्रोड्यूसर का कोर्स हम चालू करें, उसमें और भी लोगों को रजिस्टर करें, जिससे कि गोवन के जो यूथ हैं उनको रोज़गार मिले उस क्षेत्र में, और भी काफ़ी लोग इस क्षेत्र में जुड़े। तो CEO के नाते जब अपने सबसे पहले जब यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपने पद संभाला था, तो क्या चेंजेस आपको करनी चाहिए थे और आपको अभी विजन या एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा में क्या आपको चेंजेस करने हैं, कहाँ तक? लास्ट ईयर आपने देखा होगा फिल्म फेस्टिवल को हम लोगों ने पेपरलेस बनाया था। तो वो एक डेलीगेट कार्ड अभी जो आप है, ये कार्ड लेके इसमें इसी में आपकी टिकट होती है, इसी में आपकी सारी डिटेल है, इसी में आप वॉक इन करते हैं। उससे एक जो बहुत सीमलेस सा एक्सपीरियंस लोगों को हुआ। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने चेंज की जिससे कि एक स्मूथ सा माहौल आप देखेंगे कि यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल का बहुत ही कंफर्टेबल माहौल होता है। एक शिकायत होती थी कि खाना उतना अच्छा नहीं मिलता या फिर रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने हैंडल करने की कोशिश की। और इस तरह की शिकायत आप देख रहे होंगे, मैं बाहर में घूम के मैं फीडबैक ले रहा था कि लोगों का कि क्या उनका अनुभव है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो सारी चेंजेस, पिछली बार चूँकि कोई किसी तरह की कोई खतरा नहीं था वायरस का, तो हम लोगों ने फिल्म को हर तालुका में लेके गए थे, रिमोट तालुकाज में मोबाइल पे हमने दिखाया था और मोबाइल वैन्स के थ्रू ऑडिटोरियम्स में ओपन एयर स्क्रीनिंग भी 2 जगह की थी। इस बार चूँकि कोरोना वायरस का खतरा है, इसकी वजह से हम लोग को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। आने वाले समय में फिर उसको वापस उसी रास्ते में लेके जाएंगे, चूँकि आपने देखा होगा 16 तारीख का दिन इतना अच्छा था कि उसी दिन ईफ़ी शुरू हुआ और उसी दिन कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन शुरू हुई थी। तो मेरे लिए एक डबल सेटिस्फैक्शन था कि बीइंग हेल्थ सेक्रेटरी सुबह में मैंने उसको विटनेस किया और शाम को ईफ़ी को विटनेस किया था। आने वाले समय की जो आप पूछ रहे हैं उसमें अब हमारे जो प्लान है कि और भी दिशा में आगे बढ़ें इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, जिससे कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन ESG बने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए और कॉरपोरेशंस के लिए। अगर वो किसी भी तरह का अगर कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ESG के पास आएँ और ESG उसको ऑर्गेनाइज़ करें, इससे कि और भी ज़्यादा ESG का इसमें मतलब योगदान बढ़े स्टेट गवर्नमेंट के लिए। जब इंटरनेशनल फेस्टिवल हैंडल करते हैं, सभी ट्रेंड होते हैं, सभी आपके जो कर्मचारी हैं। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता था कि सभी जब बात करते हैं तो सतेजा सर मतलब लोग डरते हैं या फिर लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्टली काम करते हैं, कैसे क्या है सर ये? नहीं, मैं थोड़ा एक
डिसिप्लिन में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो आपको जो भी अच्छा दिख रहा है, तो उसके लिए हमारी लाइफ में हर किसी को थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर आप खुद अपने प्रोफेशन में डिसिप्लिन नहीं है तो उस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही एक उद्देश्य होता है, जिससे कि मिलजुल के दूसरों की तकलीफ़ समझते हुए हम सब एक एज ए टीम काम करते हैं। लेकिन एक डिसिप्लिन होने की वजह से परफॉर्मेंस का एक बहुत ही अलग लेवल निकल के आता है। तो और उद्देश्य यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़े। तो जो मैंने मल्टीप्लेक्स के रिफर्बिशमेंट के इनॉग्रेशन के टाइम पे बोला था कि रेवेन्यू सफिशिएंट से हम रेवेन्यू सरप्लस की तरफ आगे बढ़ें, और वो अभी हो जाएगा। तो जब आपके पास रेवेन्यू सरप्लस आप होते हैं तो आप बहुत तरह के कार्य कर सकते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में, जो कि आप पहले नहीं कर पाते थे, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट हैं, फिनांस पे आप एक तरह से बर्डन बनते हैं स्टेट फिनांस पे। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि और भी बहुत सारी चीज़ें इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाएंगी, जो कि बिल्कुल नई होंगी और जो लोगों को रोज़गार भी देंगी और साथ में लोगों को नए नए करियर क्षेत्र में प्रेरित भी करेंगे। सर, ये सब काम आपका देख रहे हैं हम, और जैसे गोवा इफ़ी के लिए कायम स्वरूप ये है डेस्टिनेशन है, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ बात करते वक्त भी पता चला, और मैं भी चाहता हूँ कि आप कायम स्वरूपी CEO रहे यहाँ पे सर, जो कि गोवा का और मनोरंजन क्षेत्र में गोवा के बहुत आगे जाए। क्या लगता है सर? ख्वाहिश सभी की होती है, लेकिन ख्वाहिश आप हमेशा आपकी फुलफिल नहीं होती, पूरी नहीं होती है। मुझे और मेरे परिवार को गोवा बहुत पसंद है, बट परमानेंटली यहाँ संभव नहीं होगा। हमारी सर्विस ऐसी है, हमारा कैडर ऐसा होता है। लेकिन हम चाहते हैं सर आप यहाँ पे रहे, और जब तक रहे फिर भी आपका काम हमें देखने को मिलना चाहिए सर। और थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।